Hello students, today in the stereoisomerism we will discuss the enantiomers. So what are the enantiomers? This is a tetrahedral stereochemistry of sp3 hybridized carbon atoms. So if you see the hands, our hands are identical or not. For example, this is my left hand, and if you see in the mirror, so in the mirror it will look like a right hand. So these two are the mirror images of each other. This is the mirror image. But these mirror images are non-superimposable like this. So when you hold a left hand up to a mirror, the image looks like a right hand. For example, here you can see this is the left hand and this is the right hand, and these are not superimposable. These mirror images are non-superimposable. लेकिन जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, उन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, या आप उनको ये कह सकते हैं कि उनका जो वर्क है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. सो दे मे बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी हियर द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंपाउंड, हियर दिस इज द कार्बन, and here it is the hydrogen, methyl, hydroxyl and carboxyl groups, and this is the mirror image of this compound. So mirror image will be like this. The hydroxyl group will come to here and hydrogen will go to there, and this is the carboxyl and methyl group. So this is the mirror image, but these are non-superimposable. You can see here, these are the non-superimposable mirror images. So this is molecular handedness. Such type of molecules which are not identical to their mirror images. Such type of molecules which are not identical to their mirror images are kinds of stereoisomers called enantiomers. They are mirror images but they are not identical. So they are called the enantiomers. So enantiomers are related to each other as a right hand is related to a left hand. So isomers that are mirror images of each other and non-superimposable. So isomers that are mirror images of each other and non-superimposable are called enantiomers. Enantiomer means opposite. So enantiomers have identical physical properties except for the direction of the rotation of the plane of polarized light. और enantiomers की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होती हैं, लेकिन अगर कहीं पर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट से या कंपाउंड से रिएक्शन करेंगे देन दे मे बी डिफरेंट. वो हम लोग बाद में उसको देखेंगे. So enantiomers have identical physical properties except for the direction of the plane of polarized light. क्योंकि जो हमारे पास दो enantiomer आए, जो दोनों मिरर इमेजेस हैं, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी जो कनेक्टिविटी है दैट इज सेम. केवल जो उनका ओरिएंटेशन है ऑफ एटम्स का या ग्रुप्स का वो डिफरेंट है. तो उनका जो प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट करते हैं दैट इज डिफरेंट. एक उसमें से राइट को रोटेट करेगा और एक लेफ्ट को रोटेट करता है. ये हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट एंड व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी. आप उसको देख सकते हैं. एंड सम आर द कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस बट दे आर सुपर इम्पोजेबल. तो जो भी मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द कंपाउंड, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर सेम है. सो दिस कंपाउंड इज कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल ऑन दिस.
So most molecules are mirror images of each other but are superimposable. For example, bromochloromethane, they do not show mirror image isomerism. Mirror image तो है उनके पास, लेकिन they are superimposable, so they are not enantiomers. Now, mirror images and non-superimposability. कुछ molecules जो है हम उनको देखेंगे कि what are the molecules, उनको हमने examples के तौर पे यहाँ पे लिया गया है. This is the mirror. So, for example, this is lactic acid. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, मिथाइल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स all are different groups. 4 groups are different. So this is the mirror image. This is the mirror image of this compound, lactic acid, in which 4 groups are different. But this is the non-superimposable on this mirror image. This is non-superimposable. You can see here hydroxyl और पहले जो है उसका जो है ये हाइड्रोजन था, like our left hand and right hand. So second example is a 2-methyl-1-butanol. This is also non-superimposable because it has 4 different groups. You can see here. So they are mirror images, but these are non-superimposable. So they are the enantiomers. Similarly, chloroiodomethane sulfonic acid, you can see here, this is the mirror image of this compound, and this is the non-superimposable here. Similarly, this secondary butyl chloride, this is also the non-superimposable. One another example is alpha deuterioethyl benzene. Here you can see here it is the protium, that is ordinary hydrogen, and here it is the deuterium, that is the heavy hydrogen. So these are only difference here, but all 4 are the different here atoms or groups, so are different enough to permit detectable isomerism. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं जिसमें प्रोटियम है, जिसमें ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, एंड ड्यूटीरियम है, that is heavy hydrogen, are different enough to permit detectable isomerism, means they are also enantiomers. तो ये भी जो है दोनों आइसोमर हैं, they are totally different components and their connectivity with the carbon, it is the same. केवल उनका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो डिफरेंट है. तो अगर आप इसमें एग्जांपल लें नेचर में, जो अगर हम देखें लैक्टिक एसिड, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल को स्टडी किया 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. सो दिस इज द टेट्राहेड्रल कार्बन इन लैक्टिक एसिड इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स. कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, मिथाइल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल कार्बन एटम, एंड बोथ आइसोमर्स आर फाउंड इन सोर मिल्क. जो इनके आइसोमर्स हैं, प्लस आइसोमर एंड माइनस आइसोमर, क्योंकि जो प्लस और माइनस है ये जो सॉल्यूशन में जब हम इनको देखते हैं और प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, तो एक उसको अगर राइट को रोटेट करता है और एक जो है उसको एक आइसोमर लेफ्ट को रोटेट करता है. सो दे आर द प्लस एंड माइनस आइसोमर्स. सो बोथ आइसोमर्स आर फाउंड इन सोर मिल्क, बट ओनली द प्लस एनेंशियोमर अकर्स इन मसल टिश्यू. मसल टिश्यू में जो है केवल प्लस एनेंशियोमर जो है वो ही पाया जाता है. सो दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ दिस लैक्टिक एसिड. दिस इज द मिरर इमेज. तो मिरर इमेज वाला जो कंपाउंड है, दिस इज द माइनस लैक्टिक एसिड. दिस इज अनदर, इसका जो एनेंशियोमर है, वन इज प्लस लैक्टिक एसिड एंड वन इज माइनस लैक्टिक एसिड. तो दिस इज कंप्लीटली नॉन सुपर इम्पोजेबल हेयर. अगर आप इसको रोटेट भी करेंगे, सपोज हम इसको रोटेट कर देते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसका जो है सपोज आगे आ जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप पीछे चला जाएगा, तो तब भी ये जो है इसके जो है इससे जो है इसका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. सो केवल जो ओरिएंटेशन है उनका स्पेस में वो डिफरेंट है, एंड दीज 2 एनेंशियोमर्स they can be differentiated by only a simple plain polarized light. So mirror image isomers are called enantiomers,
मिरर इमेज आइसोमर होना चाहिए एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए. They differ from one another only in the way of atoms oriented in space. Enantiomers belong to the class of stereoisomers. And the most important, that is the non-superimposability of mirror images that brings about the existence of enantiomers, gives them their optical activity. Therefore, enantiomers are also referred as optical isomers. Sorry. So, non-superimposability of mirror images that brings about the existence of enantiomers gives them their optical activity. केवल नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की वजह से ही जो उनकी मिरर इमेजेस हैं वहाँ से हमें जो है उनको वो जो है हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स. So what is the spatial structural feature or the region for handedness in the molecules? That is the chirality in the molecule. What is chirality? A molecule that is not identical to its mirror image, that is not identical to its mirror image, is said to be chiral. A molecule that is not identical to its mirror image is said to be chiral. This is the Greek word that is meaning hand. A carbon atom to which 4 different groups are attached is a chiral center. And these molecules are called chiral molecules. So these are the chiral molecules. और जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसको हम जो है स्टीरियो सेंटर भी कह सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं और कायरलिटी सेंटर भी हम उसको कह सकते हैं. सो कायरलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल. कायरलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल, वेयर एज कायरलिटी सेंटर इज द कॉज ऑफ कायरलिटी. कायरलिटी तो एंटायर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, लेकिन कायरलिटी सेंटर जो है वो अगर कायरलिटी सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल में है तो वो कायरलिटी को प्रोड्यूस करता है. सो द कार्बन एटम समटाइम्स इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन व्हेन इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कायरल नाइट्रोजन और कायरल फॉस्फोरस. ये हम लोग कुछ कंपाउंड्स बाद में स्टडी करेंगे. व्हाट आर द कंपाउंड्स दैट हैव कायरल नाइट्रोजन एंड कायरल फॉस्फोरस. So chirality, molecules that are not superimposable on their mirror image are chiral. So molecules that are not superimposable on their mirror image are chiral or enantiomers. So enantiomers are also chiral molecules. So chirality is the necessary and sufficient condition for the existence of enantiomers. So this is the condition. Chirality is the necessary and sufficient condition for the existence of enantiomers. So a compound whose molecules are chiral can exist as enantiomers. कोई भी कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल्स कायरल हैं कैन एग्जिस्ट एज enantiomers. और जिन कंपाउंड्स में कई जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अकायरल हैं वो enantiomers उनके नहीं होते हैं. ए कंपाउंड whose molecules are achiral without chirality cannot exist as enantiomers. Clear? Now chirality centers in the complex molecule. क्योंकि समटाइम्स जो है जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, सीधे क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं आएंगे, ना आपके कंपटीशन में आएंगे और ना आपके क्लासेस में आएंगे. सो कायरलिटी सेंटर जो है, सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल 5-bromodecane, दिस इज द कायरल मॉलिक्यूल, लेकिन आपको इसमें बताना है कि वेयर इज द कायरलिटी सेंटर. तो कायरलिटी सेंटर वो होगा जिस कार्बन पर चारों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर कार्बन पे हाइड्रोजन 3 सेम है और एक ग्रुप इधर आ गया. लेकिन केवल यही कार्बन इसमें ऐसा है जिसमें ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये इस कार्बन से ये CH2 पेंटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो अटैच है दिस कार्बन से.
तो दिस कार्बन हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन. सो दिस इज द कायरल मॉलिक्यूल. दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज द कार्बन. इट इज प्रेजेंट इन द स्पीयरमिंट ऑयल. दिस ओनली हैज 1 कायरलिटी सेंटर. यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर नहीं होगा. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी. यहाँ पर नहीं होगा डबल बॉन्ड में. ये CH2 है, यहाँ पर नहीं होगा. तो ये जो सेंटर है केवल यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा. तो ये जो कार्बन है यहाँ पर 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. तो दिस इज ए कायरल सेंटर. क्या ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा. और इस कार्बन से ये ग्रुप वाला जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड CH2 CCH3. यहाँ से CH2 और ये CH और ये CH2 C डबल बॉन्ड हो. तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल और दिस इज द कायरलिटी सेंटर. दिस कार्बन इज द कायरलिटी सेंटर. नाउ another molecule, nootcatone, that is the grapefruit oil. This is a bicyclic sesquiterpene ketone. It has 3 chirality centers. आप अपने आप भी देख सकते हैं कि और मॉलिक्यूल से लेके जो एनेंशियोमर्स हैं उसमें कायरलिटी सेंटर कहाँ कहाँ पर है. तो यहाँ पर जो है, दिस इज द कायरलिटी सेंटर. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स. सिमिलरली दिस कार्बन एंड सिमिलरली दिस कार्बन. अगर हम दिस कार्बन को देखें तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर ये आ गया, फिर यहाँ पर CH2 और ये करके CH3 आ गया. तो चारों ग्रुप जो है यहाँ पर इस कार्बन के पास डिफरेंट है. सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंट है, सिमिलरली यहाँ पर डिफरेंट है. सो दिस इज आल्सो ए एनेंशियोमर. नाउ अगर हम और एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल शुगर जो प्लस ग्लूकोज है प्लेज ए यूनिक रोल इन द एनिमल मेटाबॉलिज्म एंड इज द बेसिस ऑफ ए $multi-million फर्मेंटेशन इंडस्ट्री. एंड माइनस ग्लूकोज इज नाइदर मेटाबोलाइड बाय एनिमल्स नॉर फर्मेंटेड बाय ईस्ट. तो कितना डिफरेंस है. प्लस ग्लूकोज जो है वो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एनिमल मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, लेकिन माइनस ग्लूकोज का कोई भी रोल नहीं है. Similarly, plus ephedrine has not activity as a drug, but interfere with the action of its enantiomer. जो इसका enantiomer है माइनस इफेड्रीन है, वहाँ पर ये बल्कि इंटरफेरेंस करता है. तो इस टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोग उनको बाद में देखेंगे कि उनका जो है एक आइसोमर जो है वो एक्टिव है और दूसरा आइसोमर जो है वो एक्टिव नहीं है. सिमिलरली टैक्सोल है, जैसे वो कैंसर में यूज़ होता है, तो उसका एक आइसोमर काम आता है, एक आइसोमर उसका काम नहीं आता है. सो सेकंड मेथड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. ये तो अभी हमने कायरल सेंटर देखा जिसमें 4 ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं, लेकिन एक मेथड और है. ए मॉलिक्यूल दैट हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमिट्री, दैट इज़ ए प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड एनी ऑफ इट्स पॉसिबल कन्फर्मेशंस मस्ट बी आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज. अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है तो वो मॉलिक्यूल जो है नॉन कायरल होगा और ए कायरल. तो फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनोइक एसिड कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमिट्री, अभी हम लोग देखते हैं. एंड लैक्टिक एसिड हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमिट्री. जिसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होगी दैट मॉलिक्यूल विल बी कायरल. So a symmetry plane is one that cuts through the middle of a molecule or other object in such a way that one half of the molecule or object is a mirror image of the other half. For example, this is a barrel. अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे तो this has a plane of symmetry. तो ये जो हाफ पोर्शन है वो इसके इक्विवेलेंट है. सिमिलरली ये फ्लास्क है, अगर हम इसको कट करेंगे, लेकिन अगर हम हैंड को कट करते हैं तो ये वाला जो हाफ है वो इसके जो है इक्वल नहीं है. तो दिस हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमिट्री. तो दिस इज ए प्लेन ऑफ सिमिट्री. किस में प्लेन ऑफ सिमिट्री होगी और किस में नहीं होगी. सो हेयर यू कैन सी, फॉर एग्जांपल, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज द CH3, CH2 and COOH. दिस इज द प्लेन ऑफ सिमिट्री.
if you cut this molecule, तो half of this molecule is equal to the half of this molecule. Similarly, if you see here the lactic acid CH3 CH and this is OH and COOH. If you cut this through the plane, so it has no plane of symmetry, क्योंकि यहाँ पर जो है H आ जाता है और इधर जो है आपका OH आ जाता है, तो ये H and यहाँ पर OH. तो this molecule has no plane of symmetry, तो this is a enantiomer और this is a chiral molecule. So अभी हम लोगों ने देखा कि कायरलिटी जो नेचर में वो कैसे था, ग्लूकोज कैसे काम कर रहा है, माइनस ग्लूकोज. अदर एग्जांपल्स आर द लिमोनिन. लिमोनिन इट इज़ ए फ्रेग्रेंस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स. इट इज़ ए फ्रेग्रेंस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस एट्सेट्रा. जो हमें ऑरेंज में या लेमन में स्मेल आती है, दैट इज़ ड्यू टू द प्लस लिमोनिन. इट इज़ ए फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्री कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स. And here you can see this is the mirror image of the plus limonene. This is the minus limonene and it is present in the pine trees. जो pine trees हैं, जो लोबाग माउंटेन्स में रहते हैं, उन्होंने पाइनस रोसबर्गाई जो चीड़ के पेड़ हैं वो देखे होंगे. वहाँ से जो टर्पेंटाइन ऑयल निकलता है उसके स्टेम से, उसमें जो है माइनस लिमोनिन एक कंपोनेंट उसके एसेंशियल ऑयल में होता है. अदरवाइज अदर भी उसमें कंपोनेंट होते हैं, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन. So minus limonene is present in the pine trees. That is the odor of turpentine. So if you, अगर आपको क्वेश्चन एक कोई पूछा जाता है कि draw a structure of the chiral alcohol, how will you draw? So alcohol has an hydroxyl group as a functional group. The remaining all groups bonded to a carbon should be different. तो एक तो आपने alcohol group ले लिया उसमें, तो this is alcohol group and अदर ग्रुप्स भी जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए कार्बन के चारों तरफ. तो हेयर CH3 CH CH3, तो दिस इज ब्यूटेन टू ऑल. दिस इज द कायरल मॉलिक्यूल बिकॉज दिस कार्बन, दिस इज द स्टीरोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन यू कैन से हेयर, एंड द 4 ग्रुप्स आर द डिफरेंट. सिमिलरली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा सकता है कि आप उसमें कायरल ये मॉलिक्यूल है या नहीं है, या आप इसमें कायरल सेंटर बताइए. सो दिस इज द 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन. तो यू कैन सी हियर, ये तो पॉइंट होगा ही नहीं आपका. दिस कार्बन जो है ये तो कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है. सिमिलरली ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ CH2 है. दिस इज आल्सो CH2, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए. यहाँ पर भी CH2 है एंड केवल यही कार्बन है जिसमें जो है आपका जो है एक यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये CO और ये जो है CH2, इधर CH2 आ गया और ये जो है इधर CH3 आ गया. सो कार्बन 2 जो पोजीशन है उसमें मिथाइल ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन एंड दिस इज द CH2. सो दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस? मैनी मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन ए कायरल सेंटर आर कायरल. ये बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा. मैनी मॉलिक्यूल्स, लेकिन सब नहीं है उसमें. दैट कंटेन ए कायरल सेंटर आर कायरल एंड मैनी मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल दैट आर कायरल मॉलिक्यूल्स कंटेन ए कायरल सेंटर. अगर कायरल मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कायरल सेंटर होगा, और अगर कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल कायरल होगा. एंड देयर आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन ए कायरल सेंटर्स एंड येट आर ए कायरल. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इनमें कायरल सेंटर तो है बट वो ए कायरल हैं. सच टाइप ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज कंटेन मोर देन 1 कायरल सेंटर. अगर मोर देन 1 कायरल सेंटर हैं तो ये हम जो है बाद में देखेंगे इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को. सो दीज आर नोन एज मीजो कंपाउंड्स and these molecules are achiral because they possesses an internal plane of symmetry. यहाँ पर internal plane of symmetry जो है वो होती है that makes them superimposable on their mirror image. तो ये हम लोग अभी उसको बाद में स्टडी करेंगे. So these are the meso compounds. तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है. So if there is a 1 chiral center in a molecule, अगर 1 chiral center in a molecule है तो certainly the molecule is chiral.
एंड देयर आर सम कायरल मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन नो कायरल सेंटर। इस टाइप के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, जिसमें कायरल मॉलिक्यूल्स तो हैं वो, बट दे डू नॉट हैव द कायरल सेंटर। सो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट्स में जाके उसमें पूछ भी सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।